चलिए, क्या आज of topics on force on a conductor carrying current. So when a conductor is placed in a magnetic field, magnetic field exerts a force on the conductor, and we have to derive the expression for that force which the magnetic field exerts on a current carrying conductor. So for this, let us consider a magnetic field produced by any source. So B is the magnetic field. क्या should be? Magnetic field. आप बात कीजिए, कोई बात नहीं. Magnetic field. तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को रखेंगे जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, एंड let I is the current that flows through the conductor, and the conductor is placed at an angle theta with the direction of the magnetic field, right? क्या है ये? कंडक्टर which is placed at an angle theta with the direction of the magnetic field, and I is the current that flows through it. Let L is equal to length of the conductor. L is equal to length of the conductor, and A is equal to area of cross section. Area of cross section. ठीक है. A is area of cross section. L is length of the conductor. I is the current that flows through the conductor, and this conductor is placed in a magnetic field at an angle theta. Very good. Magnetic field will exert a force on it, and we have to derive the expression for the force. So let B is equal to magnetic field L is equal to length of conductor, A is equal to area of cross section, and I is equal to current in the conductor. Now see, as we know, a conductor contains free electrons. आसान है? क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जब उसमें करंट फ्लो हो जाती है, the electrons move with a velocity which is known as, okay, ठीक है, drift velocity. कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो जब हम कंडक्टर की बात करेंगे, a conductor contains free electrons which move with drift velocity v, which move with a drift velocity v when a potential difference is applied to it. When a potential difference is applied to it.
तो जब हम कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर यह इस अप्लाई करो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स अख एंड कथ सतन करोन कनेक्ट माइनस नेगेटिव टर्मिनल सतन, ब्याक एंड कथ सत करोन कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल सतन, ये गो V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो जाएगी? करंट। करंट हज डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड्स, यम क्या पॉजिटिव टर्मिनल्स आउटवर्ड्स, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये में नेगेटिव सेटिंग क्या गैस इलेक्ट्रॉन, कुछ बात कीजिए, ये बच्चों को देखना है, बोलो रिपल्शन। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करे? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स गसन मूव फ्रॉम B end to A end, right? From B end to करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। बात क्लियर? जो इनकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? drift velocity, drift velocity V। So when a conductor contains free electrons which move with the drift velocity V when a potential difference is applied to it, or in other words we can say when current flows through it, there is a moment of the electrons, there is a moment of the electrons with velocity known as drift velocity। क्या वेलोसिटी? हम इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात क्लियर? चलिए ठीक है। तो इसी कंडक्टर को हमने किस में प्लेस किया है? मैग्नेटिक फील्ड में। किस में प्लेस किया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक लॉरेंटिज फोर्स या लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। जानते हो आप? दिस फोर्स F इज इक्वल टू चार्जेड पार्टिकल, दैट इज चार्ज, multiplied by V cross B, where V is the velocity of the particle and B is the magnetic field, B is the magnetic field। यानी अगर हम किसी भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूव कराएंगे विद वेलोसिटी V, विद वेलोसिटी V, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्जेड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है? Q इंटू V क्रॉस B। पढ़े हो आप? पढ़ चुके हो आप? ठीक है ना? सो दिस इज Q into V cross B, right? This force is known as Lorentz force। तो बेटा अगर हम यहां पे बात करेंगे, यहां भी तो कंडक्टर है, कंडक्टर में एक्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्जेड पार्टिकल्स। तो जब करंट फ्लो हो जाती है, ये करंट फ्लो होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द, क्या ये चार्जेड पार्टिकल्स नहीं है? सही है। क्या ये मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में? अगर हम इसको प्लेस करेंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो इस वनो इस क्वेश्चन कि अगर यह कंडक्टर इस लोन त्रावन कथ मज, अत मज क्या फ्लो गसान करंट, ये कथ मज त्रावन इस मैग्नेटिक फील्डस मज, ये अत मज करंट फ्लो गस, अत गस मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ द
गो यम कंडक्टरस अंदर इलेक्ट्रॉन्स कथ मज तेल मूव कर कंडक्टरस मगर कंडक्टरस क्या नेबरिम साइड मैग्नेटिक फील्ड गो वनो ना तेल यम चार्जड पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझ लीजिए बात, यानी इस पे फोर्स क्यों होता है, इस पे फोर्स क्यों होता है, यहां पे तो कॉज भी आपको क्लियर हो जाएगा। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, वो चार्जड होना चाहिए, उसको हम किस में डालेंगे, बात कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में। किस में डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन ये इन मोशन होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, इन मोशन होना चाहिए। जब ये इन मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं हम इसको, लॉरेंटिस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो क्या ये कहानी यहां पे भी चलती है? जी सर चलती है, क्योंकि जो हमने कंडक्टर लिया, इसमें जब करंट फ्लो हो जाएगी, वो उसी वक्त हो जाएगी जब इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। क्या करन, कथ करो, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या करन, मूव। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करन मैग्नेटिक फील्डस मज। वनो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर तमन पे एक्सर्ट, शाबाश, क्या कर एक्सर्ट, कमन पे, इलेक्ट्रॉन पे, चार्जड पार्टिकल शायद कमन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मगर इलेक्ट्रॉन्स कथ मज, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स गो एक्सर्ट, इन अदर वर्ड्स कथ पे गो सु फोर्स एक्सर्ट। तुम वनो इत पशर पठन वन बह, यम इलेक्ट्रॉन्स बोहर मज भरित, हम इलेक्ट्रॉन्स कथ मज बंद कर, बोहर मज बंद कर। ठीक है, अत इन इलेक्ट्रॉन पे गो फोर्स एक्सर्ट, इन अदर वर्ड्स वनो कि अत बोहर सरसे पे गो फोर्स एक्सर्ट। बात समझ रहे हो ना? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर एक्सर्ट, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर एक्सर्ट, कमन पे, तुम कथ मज, इसलिए ओवरऑल कथ पे गो तेल फोर्स एक्सर्ट, कंडक्टर्स पे। अब बात समझ गए, अब आप बात समझ गए। लेकिन ये शर्त जरूरी है कि अगर इस निमोन एफ ये गो बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, चार्जड पार्टिकल गैसे आसुन तेल आस फोर्स, इलेक्ट्रॉन चार्जड पार्टिकल है, ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वेलोसिटी कैसे आसुन, यानी ये कैसे आसुन इन मोशन, इन मोशन। क्या कैसे आसुन, इन मोशन। ठीक है ना, ये इन मोशन आस, यम सातन करंट फ्लो गैसे, यम सातन करंट फ्लो गैसे तेल तेल छा इलेक्ट्रॉन आसान इन मोशन के रेस्टस में, इन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तुस प्रेजेंट चुस, तो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, इसलिए यमन इलेक्ट्रॉन पे क्या गैस एक्सर्ट फोर्स, सु फोर्स गो इन अदर वर्ड्स का पे, कंडक्टर्स पे, सु फोर्स का पे गो इन अदर वर्ड्स कंडक्टर्स पे। तो हमने लिखा ए कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स which moves with drift velocity v, which moves with drift velocity v when a potential difference is applied to it. So magnetic field B will exert a force on electrons. Magnetic field B will exert a force on electrons, which
in turn, which in turn is a force on the conductor. असल में तो फोर्स किन पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, लेकिन वो फोर्स ओवरऑल किस पे होगा, कंडक्टर पे होगा। किस पे होगा, कंडक्टर पे होगा। चलिए ठीक है, नसी लेट स्मॉल f इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। स्मॉल f इज इक्वल टू फोर्स ऑन, इस कंडक्टर में तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलहाल हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे। कितना रखा है हमने, स्मॉल f। स्मॉल इज द फोर्स on one electron. Therefore we can write F is equal to, हाँ ये रिलेशन अभी जो हमने रिलेशन लिखी थी, किसके बराबर फोर्स होता है, F is equal to Q, हाँ V क्रॉस B. B is magnetic field, V is velocity and Q is, चलिए ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज किसके बराबर होती है, 1.6। वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। थ्योरी में कैसे लिखते हैं हम इसकी चार्ज, क्यू से या ई से, क्यू या ई लिखते हैं ना। अगर हमें कहीं पे लिखना होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू -1.6 into 10 raised to power -19 coulombs, राइट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ई, लेकिन इसकी चार्ज माइनस है, यहाँ पे नेगेटिव लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी किसके बराबर है, शाबाश, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे v क्रॉस, हमने मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर रखा है, b के बराबर, सो इट इज v क्रॉस b। तो थोड़ी सी चेंज यहाँ पे आ गई। जनरल फॉर्मूला हम जब डिराइव करते हैं तो यहाँ पे हम q डालते हैं, q इज द चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे सो F इज इक्वल टू -E इंटू V क्रॉस B। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, किस पे फोर्स, क्या इस कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए ठीक है, सो वी कैन राइट हियर लेट n is equal to total number of electrons, total number of electrons। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमने कैपिटल N के बराबर रखा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर टोटल फोर्स इज इक्वल, टोटल फोर्स इज इक्वल, वो कैपिटल F होगा, तब क्या होगा, कैपिटल F। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स, स्मॉल f। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स, n times f। so we can write this is equal to n times f, राइट। अब अगर हमें ये पता चले कि ये n किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम यहाँ पे डाल देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो लेट small n is equal to number of electrons per unit volume, n is equal to number of electrons per unit volume। तो इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चलेगा, यहां से हमें पता चलेगा कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। चलिए आसान है। सो आपका स्मॉल n किसके बराबर है,
total number of electrons divided by volume of the conductor. Volume of conductor. Total number of electrons divided by volume of conductor. यानी n आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं. मान लीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है. चार्ज पर यूनिट लेंथ वो चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसी तरह से हम बात करेंगे किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है ना, मास पर यूनिट. सो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. क्लियर. चलिए ठीक है. सो यहाँ पे स्मॉल n आपका किसके बराबर होगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है आगे आपके सामने है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N है. बिल्कुल ठीक. क्या है यहाँ पे, कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. आप यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द कंडक्टर, सिलेंडर. ठीक है ना. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A. व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. चलिए तो मुझे बता दीजिए आप, सिलेंडर अगर जिसकी लेंथ किसके बराबर है, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, शाबाश, L के बराबर, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, शाबाश, पढ़ चुके हो 10th क्लास में, पाई और स्क्वायर H. ठीक है ना, या पाई आर स्क्वायर L. वहां पे तो H रखते थे हम. इसकी हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इट इज H. सो इट इज पाई आर स्क्वायर H. पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. पाई आर स्क्वायर मींस यत बवनान छुस अक्सर ये गो मचर यमुक. क्या गो यमुक, ये मचर. मचर गो कि ये सर्कुलर शेप, जैसा सर्कलस क्या एरिया, पाई आर स्क्वायर. सर्कलस क्या एरिया, पाई आर स्क्वायर. गो ये सर्कुलर एरिया केम सतन छु रिप्रेजेंट गसन पाई आर स्क्वायर से. पाई आर स्क्वायर से छु वना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो पाई आर स्क्वायर के बदले में A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. H के बदले में हमारे पास क्या है, L. सो इट इज AL. सो AL मीन्स, शाबाश. सो N वॉल्यूम. यहाँ पे इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई आर स्क्वायर L, which is equal to N divided by AL. N divided by AL. So by crosswise multiplication we will get here N is equal to N times AL. This is the total number of electrons inside the conductor. Total number of electrons inside the conductor. So now we can write here total force F is equal. Total force F is equal. Total force F is equal. ये क्या है, N. अब N के बदले में क्या लिखोगे, शाबाश, बात कीजिए. N NaL, NaL, शाबाश. उसके बाद स्मॉल f, बात कीजिए स्मॉल f. ये है फोर्स. ठीक. F के बदले में अपनी वाली एक्सप्रेशन डाल दीजिए. F के बदले में अपनी वाली एक्सप्रेशन डाल दीजिए. शाबाश. क्यों कहां से है, यहाँ पे माइनस E. क्या है, माइनस E. So we can write here F is equal. यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस NaL और यहाँ पे E इंटू V क्रॉस B. आप मेरी बात को समझ गए, जो मैंने यहाँ पे लिखा ये माइनस कहाँ से आया, सर ये माइनस ही है. ठीक.
और V क्रॉस B हमने डाला, यह है NaL। अब इसको लिखेंगे हम, यह इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। कोई पूछे कंडक्टर कैरिंग करंट, उस पे फोर्स क्यों होता है? सर आसान है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो चार्जड पार्टिकल्स होते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है ना? तो जब मैग्नेटिक फील्ड चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करे, दैट इन टर्न द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ऑन द बॉडी ऑफ द, ऑन द बॉडी ऑफ द, यानी बोरी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पे लगा फोर्स। ओवरऑल तो किस पे लगा? वो पूरी बोरी पे लगा, ठीक है ना, पूरे कंडक्टर पे लगा। तो वही फोर्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात आप जानते हैं, पढ़ चुके होंगे आप, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? A relation between current and drift velocity. What is the relation between a current and a drift velocity? हाँ, शायद बैग बंद करके रखा था। मतलब से अब मास प्रमोशन हो जाएगी, अब मास प्रमोशन हो जाएगी, अब कोई एग्जाम नहीं होगा, ऐसा ही सोच रहे थे। चलिए, सेंस रिलेशन, relation between current and drift velocity is, relation between current and drift velocity is I is equal N E A V D. I is equal to N E A V D, number of electrons per unit volume, charge on an electron, drift velocity, drift VD छोड़ दीजिए, V लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है drift velocity के बदले में सीधा V। क्लियर? अगर इस तरह लिखेंगे हम, multiplying both sides by L, multiplying both sides by L, we get, multiplying both sides by L we get, so ये होगा आपका IL is equal to N E A V and L। इससे पहले कोई L नहीं था, तो हमने यहाँ पे L से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी हमने L से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना? चलिए, अब हमारे पास यह है करंट एलिमेंट, IL मीन्स ए करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट जो आपका है, हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो IL इज इक्वल माइनस N E A V L, यहां पे भी हम इसका वेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो यहां पे माइनस साइन क्यों आ गई? यहां पे माइनस साइन क्यों आ गई? सर माइनस साइन इसलिए आ गई कि जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या वो एक ही डायरेक्शन में होती है? नो सर, एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? सर ये है कंडक्टर, इधर लगा पॉजिटिव चार्ज, इधर लगा नेगेटिव चार्ज। हाँ, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव? ये सेल के साथ हमने कनेक्ट किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्जड, यहां से होगी रिपल्शन, यहां से होगी अट्रैक्शन। अब ये मूव होंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आई कैन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चलिए ठीक है, राइट टू लेफ्ट। किस वेलोसिटी से मूव होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से मूव होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ओके, फ्रॉम बी टू ए। अच्छी बात है, लेकिन
करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट। तब ये जब होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये जब होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो V और I की डायरेक्शन देख लीजिए, सेम है, सेम है, अपोजिट है। वेक्टर्स पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन। क्या होगा यहाँ पे? माइनस साइन। ओके, बिल्कुल सही जवाब आपका, माइनस साइन होगी यहाँ पे। चलिए, तो ये वाली इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को देख लीजिए, यूजिंग सेकंड एंड फर्स्ट वी गेट, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट। हाँ, सो आपका F किसके बराबर होगा? माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, देख लीजिए, N यहाँ पे, N यहाँ पे, EA EA, L L, V V, राइट। चलिए, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जल्दी करो। हाँ, इस पूरी कहानी के यहां तक देख लीजिए, इस पूरी कहानी के बदले में आप क्या लिख सकते हो? N भी है, माइनस भी है, E भी है, A भी है, V भी है, L भी है। अब क्या लिखोगे? इस पूरी कहानी के बदले में क्या लिखोगे? सो IL लिखेंगे। माइनस खत्म है क्योंकि यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। IL क्रॉस B, IL क्रॉस। So from first and second we get the force on a conductor is equal to IL cross B. IL cross B. Or we can write here F is equal to magnitude of this force IL B sin theta. IL B sin theta. IL B sin theta. Okay. चलिए, ठीक है, ILB sin theta. So what is the magnitude of the force on a conductor carrying current? So it is ILB sin. कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 3। कितने फैक्टर्स? एक, कितनी करंट है? ज्यादा करंट होगी ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा करंट होगी ज्यादा फोर्स होगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज्यादा फोर्स होगा, और एंगल भी मैटर करता है। 4 फैक्टर्स, नॉट ओनली 3 फैक्टर्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन द 4 फैक्टर्स। चलिए, ठीक है, तो अब इस फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? क्लियर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? चलिए, ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, आपका F किसके बराबर? IL क्रॉस B, ठीक है ना। तो कौन सा रूल इसमें लगेगा? कौन सा रूल इसमें लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। कौन सा रूल इसमें लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। कौन सा रूल इसमें लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो, 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास A वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास B वेक्टर है। They are inclined at an angle theta. This is the smaller angle between the 2 vectors. टेल से टेल मिला हुआ है, टेल से टेल मिला हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम A to the extended thumb gives the direction of the A cross B, ठीक है ना। थंब को और कौन को? सुमा बोर्ड्स परपेंडिकुलर, इसको हम इस तरह कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स, ठीक है ना। इसी तरह से ये बात भी कह सकते हैं, सुमा एएस से परपेंडिकुलर, जी सर, सुमा इक्वल बीएस से परपेंडिकुलर। चलिए, अगर इस तरह देखेंगे, ये थंब की डायरेक्शन है, एएस क्या आविए, उन्हें बीएस क्या आविए, उन्हें बोर्डस क्या आविए, परपेंडिकुलर, बोर्डस से क्या आविए, परपेंडिकुलर। चलो बच्चा, इधर आइए, हमारा वेक्टर क्या है यहाँ पे? A के बदले में
आई एल क्या है, आई एल वेक्टर है, आई वेक्टर नहीं है, आई एल वेक्टर है। बी वेक्टर, आप फिंगर्स को कर्ल करोगे कहां से कहां, आई एल से बी की तरफ, आई एल से ए से बी की तरफ, यानी जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी, सो ए से बी की तरफ, 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 ठीक है ना। आई एल से बी की तरफ, आई एल से बी की तरफ, उधर चलिए, आई एल से बी की तरफ, आई एल से बी की तरफ, आई एल से बी की तरफ, ठीक है ना। ये स्मॉल एंगल है, इसकी डायरेक्शन टेल मिले हुए हैं, एंगल थीटा है। अब इनवर्ड्स किस डायरेक्शन में, बोर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। आई एल का क्या होगा, बी का भी क्या होगा, ओके। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, according to cross product of vectors, the direction of f is perpendicular to the plane containing vectors IL and B, IL and रूल राइट हैंड है, रूल सिक्रिव भी है। सिक्रिव को यहां रखिए, आई एल से बी की तरफ इसको रोटेट कर लीजिए, ठीक है ना। क्या ये इनवर्ड्स मूव होगा या आउटवर्ड्स, बंद छुआ करें, क्या ये खोला नहीं, बंद छुआ करें, ओके। तो इनवर्ड्स होगा ना, तो हम यहां पे लिखेंगे इनवर्ड्स। डायरेक्शन क्लियर हो गई, डायरेक्शन क्लियर हो गई, ओके ओके। तो एक केस यहां पे हम एक दो केस यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, पहला केस आपका है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कंडक्टर को देख लीजिए, ठीक है, किस एंगल पे है अभी, थीटा पे। थीटा किसके बराबर हमने रखा, 0, तो ऐसे होगा, 0 जब होगा तो ऐसे होगा कंडक्टर, ऐसे होगा ना कंडक्टर, किसके पैरेलल में, बी के पैरेलल में, किसके पैरेलल में, बी के पैरेलल में होगा, ठीक है ना। जब ये बी के पैरेलल में होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दैट मीन्स आई एल इज पैरेलल टू बी वेक्टर, आई एल इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तब फोर्स कितना होगा, शाबाश, गौर से देखिए, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, क्यों, why साइन 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू। तो हमें पता चला कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, parallel to the direction of magnetic field, parallel to the direction of the magnetic field. next क्या है, हाँ, अगर एंटी पैरेलल हुआ, एंटी पैरेलल means second case, if theta is equal to 180 degree,
if theta is equal to 180 degree, तब that is IL, that means conductor, and B or anti-parallel, right? तब क्या होगा सर? F होगा IL B sin 180 डिग्री. sin 180 का वैल्यू 0, so F is equal to 0. तो यहां भी 4 0, चाहे पैरेलल में डाल देंगे, एंटी पैरेलल में डाल देंगे तो 0 होगा. टेलकारास फोर्स एट एन एंगल, या परपेंडिकुलर ट्रावर्स साथ पूछो क्या है. तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, IL वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? B वेक्टर. किस वेक्टर? B वेक्टर. ठीक है. सो अब आपका F होगा IL B sin थीटा IL B sin 90. sin 90 का वैल्यू 1, इसलिए F को बराबर IL B. ओ मैक्सिमम फोर्स क्या है? अब मैक्सिमम फोर्स है. क्या फोर्स है ये? मैक्सिमम फोर्स. कब मैक्सिमम फोर्स होगा? शाबाश, बहुत अच्छा. चलिए यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालते हैं. यहाँ पे डायरेक्शन के लिए एक रूल है, वो मैं पढ़ाऊंगा और उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा. डायरेक्शन के लिए रूल हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखिए मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ड्स. कहां? इनवर्ड्स. कहां? इनवर्ड्स. ठीक है ना. अब हम एक कंडक्टर यहां पे लेंगे, एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसमें करंट यहां से इंटर, यहां से एग्जिट. ये है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से करंट इंटर हो रही है, यहां से एग्जिट. तो देख लीजिए आप, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर. कंडक्टर ऐसे है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस. फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस वाले डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90. तो फ्लेमिंग ने कहा मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आप आसानी से फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो. क्या इस कंडक्टर पे फोर्स इनवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा? अभी तो पता ही नहीं है. अभी तो पता ही नहीं है कहां होगा फोर्स. क्लियर? चलिए कंडक्टर ऐसे है, देखो ये फील्ड है, राइट? ये कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर आगे मूव होगा? क्या ये कंडक्टर पीछे मूव हो जाएगा? क्या ये बाहर की तरफ चलेगा? क्या ये अंदर की तरफ चलेगा? क्या ये ऊपर की तरफ चलेगा? क्या ये नीचे की तरफ चलेगा? अभी तो हम जानते ही नहीं. आप निकालें इसकी डायरेक्शन. क्या रूल बताया उसने? लेफ्ट हैंड रूल. क्या रूल बताया? लेफ्ट हैंड रूल. वो कह रहा है कि आपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, लिया. लेफ्ट हैंड में ये वाली फिंगर, फोर फिंगर और मिडल फिंगर ले लीजिए, सेंट्रल फिंगर. ठीक है ना. और इसी तरह से थंब, तीनों को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए तीनों को. ठीक है, जोर लगा के, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट? अब देखिए ये फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर का पहला लेटर एफ, फील्ड. क्या है ये? अब इसको लीजिए आप फील्ड की डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में. क्लियर? और सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स.
ठीक, तो क्या ये हुआ करंट की डायरेक्शन में, ये फील्ड की डायरेक्शन में, ये उता तला उता तला उता ऊपर की तरफ, किस जानिब, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर है। क्लियर, बात समझ गई। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज stretch the forefinger, central finger and thumb of your left hand so that they are mutually perpendicular to each other, so that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger points in the direction of field, central finger, central C current, central finger in the direction of current, then the direction in which thumb points gives the direction of force. ओके, सो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा, ILB sin थीटा, मैक्सिमम फोर्स आपका ILB है। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मिडल फिंगर या इस फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, और इसको ये अपने आप ही हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है ना। तो यही फोर्स कल हम यही रिलेशन हम यूज करेंगे। सो कल के टॉपिक में व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स, I1 यहां भी, I2 यहां भी, इनके दरमियान फोर्स होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें दो केसेस हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।